1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 20 ਪੈਸੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, 80 ਰੁਪਏ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ 1+1 ਕਰਨ ਡਰ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। 80 ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ 253 ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ 253 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਲ ਦਾ? 253 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 500 ਕਰੋੜ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਸੀਂ 20 ਟੈਂਡਰ ਚ ਭਰੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ। ਬਾਕੀ 200 ਟੈਂਡਰ ਬਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲੇ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਭਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਭਰੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਵੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ 200 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਟਲਾ, ਉੱਥੇ 90 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ। ਸੜਕ ਟੱਪ ਕੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਲ ਤੇ ਸਸਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋਏਗੀ। ਸਸਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੁਕਾਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਮਾਲ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਵੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ 1+1 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ 2 ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 1+2 ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਲ ਤੇ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਰ? ਇੰਨੀ ਪਹਿਲੇ 70 ਪਹਿਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 70 ਰੁਪਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, 10 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਸੇਲ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ। ਅੱਛਾ ਫਿਕਸ ਅਮਾਉਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਹੀ ਫਿਕਸ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸਮਝੇ? ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪੈਸੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਖਤਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। मतलब फिक्स एक्साइज ड्यूटी देती, और कुछ नहीं देता। ਸਾਲ ਦੀ? ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਿਆ। 60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਕਿਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। 60 करोड़ वो तो सरकार के खाते में गया ना। नहीं वो सरकार के खाते नहीं, वो दूसरे वाला अमाउंट कह रहा हूँ। कह रहे वो थोड़ा बता रहे हो तुम अभी। 150 करोड़ से आप समझदार हो गए ने, बड़े कारोबार गल ने गलती जी बड़ी की है ना, जिस वक्त ठेके मिलने लगे उस वक्त जी ब्लैक लिस्ट कंपनी से उन्होंने दे दिते। हाँ ये भी आया पेपर न्यूज़ से, न्यूज़ बोल रहे हैं ब्लैक लिस्ट वालों को बुला के दिए। जद कि एयरपोर्ट का ठेका 250 करोड़ छुट्टिया से 150 वाला ने देता, और कहता 250 वाला जो ब्लैक लिस्टेड है। अपने बंदों को कमाई कराएंगे। नहीं अपने बंदों को नहीं जी, वो तो वो बंदे जो इनको दें, इनके विश्वास पात्र हों। हाँ जो भी गल ने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਪਕੜ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, L1 ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 90% ਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀਤਾ। उन्होंने जो खेल खेले उन पे दसना ही है ना कि एवं खेल खेलते हैं। खेल तो 12% जन बने, ये तो दौरा नहीं। कहाँ से आया? और शुरू में जो लेते हैं उन्होंने वो मोटे लोड़ की सी 12 पर थोड़ी गाड़ी का ट्रक आया, 12% पैसे मिलेंगे 6 शुरू की चीज होंगी। शुरू का कोई क्वेश्चन ही नहीं ना, वो तो वैसे प्यार ना जो दे दो, तो देने तो पहले वही दे देंगे जो चले गए सी। ਵਿਚੋਲੇ ਹੁਣ ਵਿਚੋਲੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਦ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਈ 6% ਜੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 6% ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਾ ਸਮਝੋ ਹੈ।
6% देना भी आसान नहीं सीधा। सुन लो, आज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਆਇਆ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ, तो 12 करोड़ रुपया ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਉਹ 6 ਕਰੋੜ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਦਿਓਗਾ 10 ਛੱਡ। हाँ वही तो दिक्कत सी सारी। 6 ਕਰੋੜ ਕਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਕਰ ਨੋਟ ਉਧਰ ਥੋੜੀ ਪੈਨੇ ਦੇ ਦੇਂਗੇ। अच्छा जी। ਬਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2% ਤੋਂ 12% ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ? ढल वगैरह जो अमन ढल वगैरह ने दिल्ली के बाद पंजाब भी ले ले, जिले पंजाब ठेके ले, वो पिट्टेगा नहीं पंजाब वाला जो शराब का काम करता सी। केजरीवाल ने सारे ठेके उन्होंने देते। एबीपी न्यूज़ हाँ कर रहा थी। वो अंदर सारे दिन मतलब आ गए, हाँ जी क्या है जी, कौन है, कहाँ है जी, क्या हुआ है जी, बताओ जी। मैं कहना देखो जी, मेरा बेटा यहाँ नहीं रहता, 2 साल हो गए खाली करके जा चुका है आपको, ये बाहर मरवास तो लिखा है जी। मैं कहा जी मैं तो उसका चाचा हूँ, मुझे नहीं। सर साड़ा एक वर्ल्ड भी जड़ा ना, साड़ी जानू स्यापा जी बोल कुछ नहीं सकते, ते अंडर टेबल की गल्लां ने हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर परमात्मा करेगा। वैसे अगेंस्ट कैसे नहीं बोल सकते। ये है बीजेपी द्वारा जारी स्टिंग ऑपरेशन, जिसे बीजेपी ने स्टिंग मास्टर का स्टिंग ऑपरेशन नाम दिया है। इस वीडियो में एक आदमी बोलता हुआ दिखाई दे रहा है कि उसे 80% का फायदा हुआ है, यानी 1 रुपए का माल बेचने पर उसमें 80 पैसे का फायदा होता है। इतना ही नहीं, वो आगे कहता है कि 20 रुपए का माल लेकर जितने में मर्जी हो उतने में बेचो, बस हमें पैसे फिक्स चाहिए। स्टिंग में दिखाई दे रहे शख्स को बीजेपी ने शराब नीति में अनियमितताओं के आरोपी शनि मारवा के पिता कुलविंदर मारवा बताया है। बता दें कि शनि मारवा का नाम सीबीआई की एफआईआर में 13वें नंबर के आरोपी के रूप में दर्ज है। स्टिंग ऑपरेशन जारी करने से पहले बीजेपी के दिग्गजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शराब नीति में घोटाले को लेकर केजरीवाल सरकार पर जमकर प्रहार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि शराब नीति से जो 80% का लाभ हुआ वो दिल्ली की जनता की जेब से निकालकर मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने दलाली के माध्यम से अपनी जेब में डाला। हमने आपको कहा था कि ये शराब कमीशन और घोटाला एक्साइज नीति को लेकर किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने किया है, ये आप सब ने देखा है। वैसे तो आप सब ने अभी तक आप सब समझ ही गए होंगे कि वास्तविक रूप में इसमें हुआ क्या है। आश्चर्य का विषय है, यह जो व्यक्ति है मारवा जी, इनके बेटे कुलविंदर मारवा के स्टिंग ऑपरेशन को आपने देखा। इनके बेटे सनी मारवा 13 नंबर अक्यूज्ड हैं सीबीआई के चार्जशीट में, आरोपी पत्र में। और जो पूरा मोडस ऑपरेंडाई समझाया है उसमें मोटी मोटी बातें क्या हैं। नंबर 1, आप सोच के देखिए, 80% प्रॉफिट हमारा है, मतलब ठेकेदारों का, और जो मित्र हैं अरविंद केजरीवाल के, जो मित्र हैं मनीष सिसोदिया के, 80% प्रॉफिट उनका है। और राजस्व को केवल 10% मिलना है, बाकी सारा कुछ मित्रों को मिलना है। 1 रुपए के माल के अंदर 80 पैसे हमारे होते हैं, बस 20 पैसे का माल होता है। हमें फिक्स इतने पैसे दे दो, 20 का माल ले लो, जिसे मर्जी बेचो। पहले आप हमें अपना कमीशन दे दीजिए, हमें अपना पैसा दे दीजिए, और 20 पैसे का माल उठा लीजिए, उसको आप 80 करके बेचिए। किसे बेचिए? चोरी करिए, उसको गलत तरीकों से बेचिए, इलीगल तरीके से बेचिए, 1 का 2 करिए, 1 का 1 फ्री करिए, हमें कोई मतलब नहीं है। जो करना है करिए, हमें अपने कमीशन से मतलब है। ये अरविंद केजरीवाल की सरकार की नीति रही है। जो ये मारवा साहब थे, उन्होंने कहा कि हम तो कच्ची कॉलोनी में टेंडर ले रहे थे, वहां पर तो जो दुकानें होती हैं वो तो सस्ती की दुकानें होती हैं। हमसे 250 करोड़ रुपए लिए हैं, बड़े बड़े वालों से तो 500-500 करोड़ रुपए लिए हैं। डिफेंस कॉलोनी का उन्होंने उदाहरण दिया। हमसे 250 करोड़ ले लिए,
बड़े वालों से तो 500-500 करोड़ रुपए लिए। आलम यह था कि ये जो शराब नीति बनाई गई थी, इसमें 2% से बढ़ा करके 12% कमीशन इन ठेकेदारों का, इन मित्रों का, अरविंद केजरीवाल का किया गया था। आलम यह था कि अगर एक बोतल के साथ एक बोतल मुफ्त भी दिया जाए या एक बोतल के साथ 2 बोतल भी मुफ्त दिया जाए, तब भी फायदा इन ठेकेदारों को हो रहा था। आप सोचिए किस कदर लूट मची थी, किस कदर दिल्ली के राजस्व को लूटने का यहां तांडव चल रहा था। 20 पैसे का मान लो, जो मर्जी करो, सानू फिक्स्ड पैसे दे दो, सरकार का रोल खत्म, जो मर्जी करो, हमें पता नहीं, चोरी करो, जो करना है करो। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आज दिल्ली की जनता के सामने केजरीवाल के मासूम चेहरे के पीछे का राज सामने आ गया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि दिल्ली को लूटने वालों को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। सच तो ये है कि आज हमारी ही तरह दिल्ली के प्रत्येक नागरिक का हृदय रो रहा है। जितने सवाल, जितने प्रश्न हम करते थे, उस सारे प्रश्नों का जवाब ये स्टिंग ने दे दिया है। और ये भी आज स्पष्ट हो गया कि जो रेवेन्यू दिल्ली सरकार को आता था, वो शराब व्यापारियों को क्यों दिया जाता था, क्योंकि वो पीछे से घूम करके इनके पास जाना होता था। आज दिल्ली के बच्चे कह रहे हैं कि मनीष अंकल, आपने हम सबको ढाल बनाकर दिल्ली को ऐसे लूट लिया। दिल्ली की महिलाएं, माताएं, बहनें कह रही हैं कि बेटा केजरीवाल, तुम अपना भोला भाला चेहरा दिखाकर इसके पीछे इतना बड़ा लुटेरा चेहरा रखे हुए थे। आज कच्ची कॉलोनियों के लोग क्या सोच रहे होंगे, जिनको टारगेट किया गया। इस स्टिंग में आया कि कच्ची कॉलोनियों में और ज्यादा बिक सकता है शराब, बेचो जितना बेच सकते हो। कच्ची कॉलोनियों के लोगों को, झुग्गी वालों को आप शराब के समंदर में डुबाना चाहते थे, लूटने के लिए दिल्ली को। तो अब समझ में आया है कि क्यों दिल्ली की ये दुर्दशा है, क्यों गलियां टूटी हैं, क्यों हवा प्रदूषित है, क्यों पानी जहरीला है। अब समझ में आ रहा है, दिल्ली समझ रही है। मैं बिल्कुल सहमत हूं आदेश गुप्ता जी से, संबित पात्रा जी से, और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हमारा मन ये भी कह रहा है कि सही मायने में दूध का दूध, शराब का शराब जारी है। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, जल्दी ही सिसोदिया और भ्रष्टाचारी गैंग के मुखिया अरविंद केजरीवाल की भी बारी। वहीं बीजेपी के इस दावे का डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सिरे से खंडन कर दिया और स्टिंग ऑपरेशन को मजाक बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले किसी को चौराहे पर बैठाते हैं और सवाल जवाब करने लगते हैं। सिसोदिया ने कहा कि ऐसे कई स्टिंग मेरे पास भी हैं। देखो, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी काफी दिन से चिल्ला रही है, घपला हो गया, घपला हो गया। कभी 1300 करोड़, कभी 8000 करोड़, कभी 500 करोड़, कभी 144 करोड़, कभी 30 करोड़। फिर सीबीआई से इन्होंने एफआईआर कराई तो सीबीआई ने भी ढूंढ ढांड के दूर से कहीं से स्ट्रेच करके 2 कंपनियों के बीच की किसी वाइट डीलिंग को ज़बरदस्ती मेरे ऊपर थोपने की कोशिश की, वो भी सोर्सेज के हवाले से। तो एफआईआर में लिखा, उसके बेस पे मेरे घर पे रेड डलवा दी, घर पे कुछ नहीं मिला। मेरे परिवार का लॉकर तलाश लिया बैंक का, उसमें कुछ नहीं मिला। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे, चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है, मजाक है। तो ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे, फिर आप उसको भी चलाना। बहरहाल अब ये स्टिंग कई सवाल खड़े करता है। दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए स्टिंग की बात करने वाले आप नेता खुद स्टिंग ऑपरेशन में फंसते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी भी इस मुद्दे को अब बड़े स्तर पर उठाने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।